Welcome to We Learn Networks. This is session number 10 of subject Retail IT Management, and today we will cover the chapter Information Support System. Today the topic that we will cover are Introduction, Decision Making Process, Basic Decision Making Concepts, Decision Making Models, Problem Solving Using System Approach, Information support system for each organization level, types of information system, communication needs of business, communication system, introduction. Every organization has certain short-term and long-term goals to achieve. Different resources such as people, capital, energy, material, space, and time are allocated for achieving these goals. Management is a process by which these organization goals are achieved by utilizing allocated resources. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्टेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज करने होते हैं. तो ये जो मैनेजमेंट होता है ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे इन गोल्स को हम या फिर और ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है. For a management process, the resources are considered as input and the achievement of goals is the output of the process. The ratio of output and input gives the measure of manager's success, and this ratio also indicates the organization's productivity. हर मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम इनपुट की तरह कंसिडर करते हैं और जो अचीवमेंट हमें मिली है गोल्स के थ्रू उसे आउटपुट की तरह कंसिडर किया जाता है. तो इन दोनों की जो रेशो होती है, आउटपुट और इनपुट की जो रेशो होती है हमारे पास में, वो ये मेजर करती है कि हमारी मैनेजर की क्या सक्सेस रेट है और ये ही रेशो जो है वो इंडिकेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है. Productivity is equals to output, that is products और services अपॉन में इनपुट जो कि हमारे रिसोर्स जो हैं यूटिलाइज हुए हैं. मैनेजर्स रोल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज interpersonal roles, means how he is relating building leadership and mentoring. Next is informational role कि टीम कम्युनिकेशन में उसका क्या रोल है और मॉनिटरिंग में क्या रोल है. एंड डिसीजनल रोल्स कि वो किस तरीके से डिसाइड कर सकता है टू इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल, डिस्टर्बेंस हैंडलिंग, रिसोर्स अलोकेशन एंड नेगोशिएशन. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Every decision making process requires some information as input. कोई information हमें require होती है किसी भी decision making process के लिए. It is impossible to make decision without the necessary information. जब तक हमारे पास में information नहीं होगी हम decisions नहीं ले पाएंगे. Every step in the decision making process requires some amount of information. हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DDS. DDS is an information system that supports the organization's decision making activities. ये जो हमारा DDS होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है. ये हेल्प भी करता है मैनेजर को ताकि वो कंपाइल कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू कॉम्बिनेशंस ऑफ रॉ डाटा, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल नॉलेज और बिजनेस मॉडल्स, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और उसके आधार पे वो अपने डिसीजंस को बना सके. DDS also helps manager to compile information from combination of raw data, documents, personal knowledge or business models to identify and solve problems and make decisions. Basic decision making concept. The most important role of manager is decision making, also called as problem solving. जो
मैनेजर का बेसिक टास्क होता है वो ये होता है कि वो डिसीजन किस तरीके से लेता है। हम इसको ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। डिसीजन मेकिंग कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस। फर्स्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर finding an effective solution. Problem can be identified using internal and external information. Internal information can be collected from various business functions, while external information is collected from external sources. जो ये problems होती हैं हम उनको दो तरीके से identify कर सकते हैं। पहला कि इंटरनल इंफॉर्मेशन ले और दूसरा कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ले। इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है कि बहुत सारी बिजनेस फंक्शन से, वेरियस बिजनेस फंक्शनल एरिया से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है वो होती है कि किसी बाहर वाले से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। एक्सटर्नल सोर्स कुड बी इंडस्ट्री न्यूज़ लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, डेटाबेस, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सेकेंड फेज होता है किसी मैनेजर के डिसीजन मेकिंग रोल के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच अ डिसीजन इज टेकन अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रॉब्लम। कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम के साथ में हम क्या करें। फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन दिस प्रोसेस यूजेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम। अगर हमें एक अच्छा सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। समटाइम्स द डिसीजन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन मैनेजर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स इंट्यूशन। कभी कभार इंट्यूशन भी काम आती है किसी मैनेजर की है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसकी, किसी डिसीजन को बनाने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन। इंटेलिजेंस, द डेटा फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर एक्यूरेसी इन दिस स्टेज। डिजाइन, the interpreted problem is studied systematically to find the solution. Choice, this phase includes selection of suitable alternative. Implementation, this is the final and the most important stage of decision making process. The best suited solution for problem is identified. Now it is time to put the decision into effect. Decision making models. To implement decision in the practical environment is a key challenge faced by organization. Real environment could be complex and manager could face difficulties in planning and testing decision implementation. जब हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, वो एक की चैलेंज होता है कि हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। रियल एनवायरनमेंट में ये जो चीज़ होती है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है और मैनेजर को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं किसी इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन को प्लान और टेस्ट करने के लिए। Thus the real environment is simplified and represented as a model. इसीलिए जो रियल एनवायरनमेंट है उनको मॉडिफाई या सिंप्लीफाई कर दिया गया है और उन्हें एक मॉडल्स में डिवाइड कर दिया गया है। द आइडिया हियर इज टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन मॉडल रादर देन ऑन रियलिटी इटसेल्फ। तो जो तरीका है इम्प्लीमेंट करने का डिसीजंस को वो ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस या जो एनालिसिस है उसको इन मॉडल्स पे परफॉर्म करें, ना कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उन पे। 5 डिसीजन मेकिंग मॉडल्स आर, जो 5 बेसिक डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं वो होते हैं साइमंड्स मॉडल, आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल एंड मेंटल मॉडल। साइमंड्स मॉडल में क्या होता है? द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट वी डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट इज कॉल्ड साइमंड्स मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस: इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये जो साइमंड्स मॉडल होता है इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे पहले पढ़ा था, वो होती हैं इंटेलिजेंस, डिज़ाइन, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट स्टेज इज दैट इज इंटेलिजेंस चेक्स इफ अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट. इंटेलिजेंस ये चेक करती है कि क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. सेकेंड स्टेज है डिज़ाइन, जो आइडेंटिफाई करती है कि सॉल्यूशन
एंड चेक्स द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, कि हम सॉल्यूशंस डिज़ाइन करें और चेक करें फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो ये होती है कि पिक्स अप द राइट सॉल्यूशन, कि बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स आए हैं हमारे पास में सेकंड स्टेज में, उसमें से बेस्ट सूटेड जो सॉल्यूशन है उसे चूज़ करें। और जो फाइनल स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन की, वो ये डील करती है कि किस तरीके से हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें रियल लाइफ सिचुएशन में। जो सेकंड मॉडल है आइकॉनिक मॉडल, वो है द मॉडल इज द फिजिकल रेप्लिका ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट स्केल्स देन द ओरिजिनल मॉडल। ये है ना एक फिजिकल रेप्लिका होता है किसी सिस्टम का, और ये है ना बहुत सारी डिफरेंट स्केल्स पे हम इसे बेस्ड करते हैं, ना कि हम कोई ओरिजिनल मॉडल यूज़ करते हैं। These model may be 2 or 3 dimensional. Model of a production process or production line is an example of a 3 dimensional model. तो ये जो मॉडल होते हैं आइकॉनिक मॉडल, ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। और जो मॉडल है प्रोडक्शन प्रोसेस का और प्रोडक्शन लाइन का, ये एग्जाम्पल है 3 डायमेंशनल मॉडल्स के। फोटोग्राफ्स आर एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मॉडल्स, की हम जो अपने डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं वो फोटोग्राफ्स के ऊपर ले रहे हैं। तो ये जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो हमारी 2 डायमेंशनल मॉडल्स होती हैं। थर्ड मॉडल होता है हमारा एनालॉग मॉडल। दिस मॉडल इज नॉट अ फिजिकल रेप्लिका ऑफ फिजिकल सिस्टम बट इट बिहेव्स लाइक अ रियल सिस्टम। ये जो हमारा मॉडल होता है वो रियल सिस्टम की तरह बिहेव करता है। These models can be in the form of 2 dimensional charts और डायग्राम्स। ये जो मॉडल्स होते हैं हमारे पास में वो 2 डायमेंशनल चार्ट्स की फॉर्म में होते हैं या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल होता है एनालॉग मॉडल का, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो चार्ट्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, अथॉरिटी का क्या स्ट्रक्चर है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैप्स और ब्लूप्रिंट्स क्या क्या हैं। ये हमारे एनालॉग मॉडल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में होते हैं मैथमेटिकल मॉडल। दीज मॉडल्स आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव मॉडल्स। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द अबव मॉडल्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन numbers of employees and sales or number of representatives and leaders. Thus, these relationships are established numerically using more abstract model, that is the mathematical model. और लास्ट मॉडल जो हमारे पास में होता है वो होता है मेंटल मॉडल। दिस मॉडल इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन इसे बार बार यूज़ करती रहती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। Using the description of how people think about a particular situation, a mental model for any situation or a problem is built. ये तरीका, ये जो मॉडल है वो ये डिसाइड करता है कि लोग बाग किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हैं या उसके बारे में कैसे थिंक करते हैं। दिस मॉडल इंक्लूड्स पीपल्स रिएक्शन, बिलीफ, अजम्पशंस, रिलेशनशिप एंड फ्लो ऑफ वर्क। और ये मॉडल है वो इंक्लूड करता है कि पीपल किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिलीफ क्या है, उनके अजम्पशंस क्या क्या रहते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे हैं और उनका फ्लो ऑफ वर्क किस तरीके से है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूजिंग सिस्टम अप्रोच। Out of numerous tasks performed by managers decision making, it is the most important कि वो किस तरीके से problem solve कर रहा है। System approach considers the goal and objective, environment and internal working of system. This approach of problem solving includes identifying symptoms and defining a problem, describing the problem and the collection of relevant data, identifying alternative solutions, measuring or evaluating these solutions, choosing the best solution and implementing it, and last one is problem follow-up. Let us understand these steps in problem solving one by one. ये जो हमारे steps हैं वो system approach हैं जो problem solving technique की तरह होते हैं और हेल्प करते हैं किसी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने के लिए। जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस यूजिंग सिस्टम अप्रोच। द सिम्टम्स ऑफ अ प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड कि उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या है, एंड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज डिफाइंड, और जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है हम उसे डिफाइन करते हैं।
Describing the problem and collection of relevant data is the next step. Once the problem is defined, the next step is to understand the problem and collecting relevant data. जब एक बार हमारी प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उस प्रॉब्लम को हम अच्छी तरीके से समझ सकें और उसके रिगार्डिंग जितना भी हमारा रेलेवेंट डेटा है उसको हम कलेक्ट कर सकें. A problem description may include the nature of problem, its basic cause, who is impacted and the severity of impact. ये जो डिसीजन होता है या ये जो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन होता है वो इंक्लूड कर सकता है कि प्रॉब्लम का नेचर किस तरीका का है, बेसिक कॉज क्या है उस प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम ने किस किस को इम्पैक्ट किया है और उस इम्पैक्ट जो हुआ है उसकी सेवेरिटी या गंभीरता कितनी है. नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Once the problem is defined, it is important to identify all the possible solutions for a problem. Alternatives for this problem might include researching manufacturers of product A. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि store not meeting its sales target because competitors are charging lower prices for product A. कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि सेल्स टारगेट जो है वो मीट नहीं कर पा रही क्योंकि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो उसी प्रोडक्ट को कम दाम पे बेच रहे हैं. तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रिसर्च करें, रिसर्चिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्ट ए दैट विल प्रोवाइड यू दिस प्रोडक्ट एट मच लोअर कॉस्ट. कि हम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को सर्च करें जो प्रोडक्ट ए को बहुत ही कम दामों पे हमें दे. ठीक है, मैन्युफैक्चर से ही हम डायरेक्ट लें. या फिर जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ सेल एफर्ट. दिस कैन बी डन बाय प्रमोटिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, सेंडिंग बल्क एडवर्टाइजिंग ईमेल्स, मेलिंग प्रमोशंस, एड्स एंड कूपन टू कस्टमर्स. कि हम अपने जो कॉस्ट के तरीके, सेल्स के तरीके या फिर उनके एफर्ट्स हैं उनको डिक्रीज करें. और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं बाय ऑनलाइन. हम ईमेल्स भेज सकते हैं, बल्क ईमेल्स, या फिर ऐड दे सकते हैं टीवीज़ पे, या फिर कूपन्स दे सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मेजरिंग और इवेल्युएटिंग दीज प्रॉब्लम्स. In the problem solving process, it is important to check if the selected alternative enables organization to achieve its goal. कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है हम उसके तरीके उसको enable कर सके और मीट कर सके अपने गोल्स को. Considering above problem in which manager's objective is to meet the store's monthly sales टारगेट, कंसीडर कर सके कि ये जो प्रॉब्लम आई है हमें कि वो मैनेजर के ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही है किसी स्टोर के मंथली सेल टारगेट को मीट करने के लिए या नहीं. नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग. कि बहुत सारे जो सॉल्यूशंस निकले हैं और जब हमने उन सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करा तो अब हमें जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें लगता है हमारी तरीके से उसे चूज करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड लास्ट स्टेप इज प्रॉब्लम फॉलो अप. दिस इज अ लास्ट स्टेप इन द सिस्टम अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. वंस द राइट सॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड, इफ इट इज नेसेसरी टू चेक इफ इट इज वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. जब हमारे पास में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, तो हमें ये भी मॉनिटर करना चाहिए कि क्या जो हमने सॉल्यूशन यूज़ किया है वो राइट सॉल्यूशन है या फिर वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन लेवल. कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. ऑल्सो द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट. जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी डिफरेंट होती है. दस डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल डिफर्स.
Therefore, information support system used at different organization level also varies. इसीलिए हर organization level के लिए जो हम information support system use करते हैं उन्हें भी different होना ज़रूरी होता है. जो ये figure है diagram, it shows different type of information system as per the functional areas and the groups served. कि कितने तरीके के हम ग्रुप्स को सर्व कर सकते हैं. जो लोअर लेवल पे होता है वो होता है ऑपरेशनल मैनेजर्स, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है वो होता है सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ये जो हमारा होता है वो फंक्शनल लेवल होता है. नेक्स्ट हमारे पास में जाता है नॉलेज प्लस डेटा वर्कर्स, मींस लोअर मैनेजमेंट स्टाफ जो होते हैं उनके लिए नॉलेज लेवल के हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं. फिर आता है मिडिल मैनेजर्स, जिनके पास में मैनेजमेंट लेवल के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं. फिर हमारे पास में आते हैं सीनियर मैनेजर्स या फिर स्ट्रेटेजिक लेवल, जहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हम यूज करते हैं. The organization level systems are operation level systems, knowledge level systems, management level systems, and strategic level systems. Operational या functional level systems में these systems are used by operational managers to support them for mandate activities. Knowledge level system, organizations knowledge and data users uses these systems. These systems include workstations, e-learning systems and other office systems. Third one is management or tactical level systems. These systems are used by middle management level for decision making, monitoring and controlling employee performance. And last one is strategic level systems. Senior management of an organization uses these systems. They help the senior management to deal with and address complex strategic issues. ये जो हमारे systems होते हैं senior management level को hold करते हैं और ये help करते हैं बहुत ही complex strategies को बनाने में. Organization level system, knowledge level system, management level system and strategic level system we have discussed. Next one is type of information system. Different employees as per their organization levels use different information systems according to employer roles and responsibilities. The information systems are classified into 7 major टाइप्स. ये जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और हर एम्प्लॉय का जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम उसको 7 मेजर टाइप्स में डिवाइड या क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम serves the management level of an organization to make critical decisions. कि जो critical decisions हैं उनको हम management level पे किस तरीके से organize कर सकते हैं. तो ये जो हमारे business scenarios होते हैं वो rapidly changing होते हैं, इसलिए हमें accurate decisions लेने में help करता है ये हमारा जो decision support system है वो. Next one is group decision system. Group decision support system are used by organization where people are working in more than one geographical location. उन जगहों पे हम इस ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे जो यूज़र्स हैं या फिर जो हमारा स्टाफ है वो बहुत सारी ग्राफिकल लोकेशंस पे प्रेजेंट रहता है. ये जो GDSS है ये टाइम को सेव करता है बाय virtualizing, bringing employees at various locations closer and enabling them to work as a team. Next one is executive information support system. इसको हम executive support system भी कहते हैं या फिर ESS भी कहते हैं. ये एक strategic level system होता है जो कि senior management यूज़ करता है अपनी organization के लिए. These system enable senior management to forecast and plan for future business नीड्स. ये जो सिस्टम है वो अनेबल करता है सीनियर मैनेजमेंट को ताकि वो फोरकास्ट कर सके और प्लान कर सके अपने फ्यूचर बिजनेस नीड्स को. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्व्स द मिडिल एंड हायर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये मिडिल और हायर मैनेजमेंट को सर्व करता है.
It helps in operating business efficiently by providing right information. और सही information को ये provide करने में help करता है to right person at the right time. MIS helps in planning, controlling, organizing and decision making tasks at the management level. Next thing is knowledge work system and office सिस्टम. ये जो नॉलेज वर्क सिस्टम और ऑफिस सिस्टम जो होता है वो ये सर्व करते हैं नॉलेज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को. बिफोर वी डिस्कस KWS फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड हु आर नॉलेज वर्कर्स एंड डेटा वर्कर्स. ये जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं और डेटा वर्कर्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं. नॉलेज वर्कर्स वो पीपल होते हैं हु आर वेल क्वालिफाइड एंड हैविंग प्रोफेशनल डिग्रीज, जिनके पास में प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं. और जो डेटा वर्कर्स होते हैं वो पीपल होते हैं हु आर लेस क्वालिफाइड एंड डू नॉट होल्ड एनी प्रोफेशनल डिग्रीज, जिनके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती. तो जो कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल्स, एक्सचेंजिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट्स इमेजिंग and e-calendars for scheduling, etc. Next topic is transaction processing system. The operational managers for performing day-to-day store tasks are uses transaction processing systems. These systems execute and keep a track of all mundane transactions. Next topic is enterprise resource planning system. Retail organizations have various functions such as operations, sales and marketing, human resource, administration, inventory and planning and finance and accounting. जो हमारी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री और उसकी प्लानिंग या फिर फाइनेंस और अकाउंटिंग. तो ये जो सिस्टम्स होते हैं नीड टू वर्क हैंड इन हैंड एंड ऑल्सो शेयर डेटा और इन्फॉर्मेशन. तो ये जो सारे सिस्टम होते हैं ये जो ऊपर डिस्क्राइब करे गए हैं इनको आपस में एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करना चाहिए और ये सब मॉनिटर करता है हमारा रिसोर्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स. की कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं. These communication systems can be classified into electronic teleconferencing, electronic mails, electronic data interchange. बहुत सारे तरीके होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पीपल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल जहाँ पे बहुत सारी मेल्स भेजी जाती हैं ताकि एक कॉमन तरीका निकल के आए कम्युनिकेशन के लिए. और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज यूज टू कम्युनिकेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का हम ट्रांसफ़र करते हैं. ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मैसेजेस, डेटा फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स, EDI translators and EDI vans. Do it yourself. These are the questions that you have to perform by yourself. First one is explain the basic decision making concept and second one is list and illustrate the decision making models. Thank you for this session.